أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 34 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان آیتوں کو سمجھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتوں میں اور جنوں میں انسانوں میں کیا فرق ہے۔ اللہ کی یہ تین مخلوق کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی ہر بات کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتی ہے، ہر حکم کا پالن کرتی ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں کمپیوٹرز یا روبوٹس ہیں جن کو کمانڈز اگر دیا جائے، جو کہا جائے وہی ایکشن وہ پرفارم کرتے ہیں۔ ان کے پاس کیا علم ہے؟ ہاں، ان کے پاس علم ہے۔ جتنا ہم نے انہیں سکھایا وہ سمجھتے ہیں، اور آج کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں تو کمپیوٹر اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے تجربے سے بھی سیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم کمپیوٹر کو کوئی غلط کمانڈ دیں تو وہ ہمیں وارن بھی کرتا ہے۔ جیسے اگر ہم نے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا تو وہ کہتا ہے کہ آر یو شیور یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس؟ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ریکور دس آفٹر یو ڈیلیٹ۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ یس ڈیلیٹ تو وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، یعنی ہمارے فیصلوں کے آگے وہ مان لیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کمپیوٹر سے کہیں کہ ہمارا سر دکھ رہا ہے، یعنی ایسے سافٹ ویئرز ہیں جس سے اگر ہم کہیں کہ ہمارا سر دکھ رہا ہے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ آپ یہ دوائی لے سکتے ہو، آپ شکنجی پی سکتے ہو، آپ کو اس سے بہتر لگے گا، اور اگر آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ یعنی وہ ہمیں سجیشنز بھی دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آئیڈیاز بھی دیتا ہے۔ اور اگر ہم ایسے سافٹ ویئر یعنی چیٹ جی پی ٹی ایسے سافٹ ویئر سے کہیں کہ میں اپنا موبائل توڑنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں ابھی موبائل اپنا توڑنے والی ہوں، تو وہ مجھے کہے گا کہ آئی تھنک دس لکس ٹو بی اے بیڈ آئیڈیا، میرے لیے مجھے لگتا ہے یہ غلط کر رہے ہو آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ اس کو ایسے سالو کرو، آپ اسے توڑو مت۔ یعنی وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ غلط چیز کرنے والے ہو۔ تو کمپیوٹرز اور روبوٹس کے معاملے میں آخری فیصلہ ہمارا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے پاس بھی علم ہے، وہ سمجھتے بھی ہیں، ان کا ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، ان کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی فری ول نہیں ہوتی، وہ اللہ کے فیصلوں کے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ لیکن انسانوں کے ساتھ اور جنوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ انسانوں کے پاس چوائس بھی ہوتی ہے، ان کے پاس فری ول بھی ہوتی ہے، ان کی خواہشات بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے فیصلے کچھ حد تک ان کے پاس کچھ فری ول ہوتی ہے جس سے وہ اپنے فیصلے خود لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی بات چاہے تو مانے اور چاہے تو نہ مانے۔ لیکن جو نیک جن اور نیک انسان ہوتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے جو اللہ پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کو بن دیکھے۔ اور بہت سے ڈسٹریکشنز ہیں انسانوں کی لائف میں، ان کی خواہشات بھی ہوتی ہے، ان کی نفس بھی ان کو نیک کام سے روکتی ہے، ان کو شیطان بھی گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، اور اس سب کے باوجود جب وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہی خاصیت ہے انسانوں میں جو انہیں فرشتوں سے کے اوپر فوقیت دیتی ہے۔ آیت نمبر 34، و اور اذ، جب، اذ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو جب، قلنا ہم نے کہا، یہ نون الف جو ہے وہ ہم کا معنی دیتا ہے، ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو لی آدم آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا،
सजदा का रूट है सीन जीम दाल, और सजदे का मतलब होता है सर जमीन पर रखना। सजदे का मतलब झुकना नहीं है, झुकना होता है रुकू। सजदे का मतलब है पूरी तरह से जमीन पर सर रख के सजदा करना। ली आदमा, आदम को। फ सजदू, फ का एक माना होता है तो, और फ का माना बनता है कि फौरन। फौरन जैसे ही अल्लाह सुब्हान ताला ने ये हुक्म दिया, फौरन वो सजदे में गिर गए। और उस्ताद नुमान अली खान बता रहे थे कि ग्रामर के हिसाब से ली आदमा जब हम कहते हैं फॉर आदम, तो अगर हम अरबिक ग्रामर के हिसाब से इस चीज को समझें तो इसका मतलब हुआ कि अल्लाह को ही सजदा किया, मगर आदम की वजह से। यानी आदम एक ऐसी मखलूक अल्लाह ने बनाई जिसकी वजह से अल्लाह को सजदा किया गया। यानी ये ग्रामर के हिसाब से, अरबिक ग्रामर के हिसाब से उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन निकाला है। फसजदू, तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला मगर इब्लीस, इब्लीस के सिवाय इब्लीस के। इब्लीस का रूट है बा लाम सीन, और बलासीम जो रूट है उससे बहुत से माने निकलते हैं। एक ये है कि हैरान होना, कुछ बोल ना सकना, सख्त ना उम्मीद होना, सख्त गमगीन होना, और सख्त मायूस होना। इब्लीस जो था वो जिन्नों में से था, फरिश्तों में से नहीं था, और ये हमें पता चलता है कुरान की दूसरी जगह पर, दूसरी आयतों से। तो इब्लीस जो था वो अल्लाह की इतनी इताअत करता था, इतनी इबादत करता था, यानी आप समझे कि इस कदर उसने इबादत की कि अल्लाह ने उसे फरिश्तों की सफ में लाकर खड़ा कर दिया। फरिश्ते जो अल्लाह की एक बात की भी नाफरमानी नहीं करते हैं। तो समझिए कि इब्लीस जो जिन था उसने अल्लाह की किस कदर इताअत की होगी, किस कदर अल्लाह की इबादत की होगी कि वो फरिश्तों के सफ में आके खड़ा हो गया था। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने इंसानों के बारे में जो इस्म बताए, यानी नाम और सिफात बताई इंसानों के बारे में, फरिश्तों को जब इल्म दिया, तो उसके बाद फरिश्ते इस बात से रजामंद हो गए कि इंसान बेहतरीन मखलूक है और अल्लाह का फैसला सही है। लेकिन इब्लीस इस बात से अब भी सहमत नहीं हुआ था। वो दिल ही दिल में इस बात को गलत समझता था, इस फैसले, अल्लाह के इस फैसले को गलत समझता था, और उसे लगता था आदम में कोई ऐसी बात नहीं है, इंसान में कोई ऐसी बात नहीं है कि उसे सजदा किया जाए। तो बाकी सारे फरिश्ते एक साथ सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। अबा, अबा का मतलब होता है इनकार करना। अबा, उसने इनकार कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया सजदा करने से। वस्तकबरा, और उसने तकब्बुर किया। इस्तकबरा कहते हैं अब बड़ा बनने की ख्वाहिश को, उसने बड़ा बनना चाहा। वकाना, और था वो। वकाना, काना का मतलब होता है वो हो गया, यानी फ्यूचर के लिए भी यूज में आता है, और काना पास्ट के लिए भी यूज में आता है। वकाना और वो हो गया, या वकाना और वो हमेशा से था, मिनल काफिरीन, काफिरों में से, हमेशा से वो काफिर था। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि दिल में ये हमेशा से काफिर था, चाहे इसने कितनी भी इबादत की हो। दोनों ही माने सही हैं कि वो हो गया काफिरों में से, या वो था हमेशा से काफिरों में से। कुरान की दूसरी आयतों से हमें ये भी पता चलता है कि इब्लीस ने कहा कि क्योंकि मुझे आग से बनाया गया है और आदम को मिट्टी से बनाया गया है, मैं आदम से बेहतर हूं, और इस वजह से यानी उसने सजदा करने से इनकार करने का ये रीजन दिया। तो अल्लाह का फरिश्तों से आदम को सजदा करवाने का हुक्म देना, करने का हुक्म देना, यानी आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत और उनकी खिलाफत का इजहार करता है। और इसके अलावा ये जो सजदा था, ये सजदा ताजीम था, यानी अल्लाह का ही हुक्म मान के सजदा किया जा रहा था, यानी इबादत अल्लाह ही की जा रही थी। और
यानी यहां बात हो रही थी अल्लाह की बात मानने की। अगर अल्लाह ने कहा कि सजदा करो तो बस जो कहा गया वो करा, और ये अल्लाह ही की इबादत है। अल्लाह को ना मानना सिर्फ यही कुफ्र नहीं है, बल्कि उसके हुक्म से इनकार करना या अपने आप को बड़ा समझते हुए, घमंड करते हुए ये गुमान करना कि मैं बेहतर हूं, और ये भी कुफ्र है। इस्तकबरा का मतलब होता है दिल में बड़ा बनने की ख्वाहिश होना, बड़ा मनवाने की ख्वाहिश होना। तो तकब्बुर अल्लाह की बरकत से महरूमी का सबब बनता है, और अल्लाह की बात के आगे इब्लीस ने अपनी सोच या अपनी ख्वाहिश को रखा, और इसी वजह से वो काफिर हो गया। तो यहां से हमें भी ये सबक मिलता है कि हमें भी अल्लाह की बात के आगे अपनी नफ्स या अपनी ख्वाहिशात को नहीं रखना चाहिए। तो इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इब्लीस से नाराज हुए, और ये हम आगे कुरान में दूसरी आयतों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वक़ुलना, और कहा हमने, या आदमु, ए आदम, उस्कुन रहो, अंता तुम, व ज़ौजुका, और तुम्हारी बीवी। का जो है यहाँ पे उससे माना बनता है तुम्हारा, तुम्हारी बीवी का, तुम्हारी का। और कुम जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है, और का जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है। अल जन्नत, जन्नत में, व कुला, और तुम दोनों खाओ। ये जो अलिफ आ रहा है ये डुअल यानी दो का माना देता है। अरबिक लैंग्वेज में वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, तस्निया का मतलब होता है डुअल, और इसको पढ़ने के लिए अलिफ लगाया जाता है, डुअल मोस्टली अलिफ लगाया जाता है। और जमा जब प्लूरल होता है तो वाव या वाव नून लगाया जाता है। तो यहाँ कहा गया मिनहा, उससे। ये जो हा है ये जन्नत की तरफ इसकी जमीर जा रही है। तो तुम खाओ वहां से, रगदन, फरागत से। रगदन का रूट है र, गैन और दाल। आराम से खाओ, खूब जी भर के खाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, जितना मर्जी चाहे उतना खाओ, जो चाहे वो खाओ। रगदन। और उस कुन का मतलब होता है सुकून, सीन काफ नून इसका रूट है, और एक माना सुकून भी होता है, यानी सुकून से रहो, आराम से रहो, उस कुन आराम से रहो। और जोजा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बीवी के लिए आता है। हैसु, हैसु का रूट है हा या सा, और हैसु का मतलब होता है जहां से, यानी वेर एवर, जहां भी तुम चाहो। शितुमा, शाह जो हम पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंशा अल्लाह, और शाह यानी चाहो, चाहे, जो चाहे अल्लाह, चाहना। माँ के साथ अलिफ जो आ रहा है ये माना देता है डुअल का। तो तुम दोनों चाहो, जहां से चाहो, वेरेवर, जहां से भी तुम चाहो वहां से खाओ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा सलामुन अलैहा को जन्नत में सुकून और आराम से रहने की इजाजत दी, और इजाजत दी कि बिना रोक टोक हर चीज जहां से तुम चाहो इस्तेमाल करो। वला, और ना, तकरबा, तुम दोनों करीब जाना। यहाँ पे भी अलिफ है जो डुअल का माना देता है। तकरबा तुम से माना देता है ता, और करबा इसका रूट है काफ, रा और बा, करीब, कुर्ब से मीनिंग बनता है, यानी ना तुम दोनों करीब जाना। हादिही, इस, शजरता, शजर हम उर्दू में भी कहते हैं, शजर दरख्त को कहते हैं, पेड़ को कहते हैं। तो इस पेड़ के करीब न जाना। फतक, फतकूना, वरना तुम दोनों हो जाओगे। ये फिर से अलिफ आ रहा है, अलिफ दो का माना देता है। फतकूना, तो तुम दोनों हो जाओगे, मिन ज़ालिमीन, जालिमों में से। तो यहाँ अल्लाह ने एक छोटी सी पाबंदी लगाई इम्तिहान के तौर पर, और कहा कि या इस पेड़ के करीब भी मत जाना। ये नहीं कहा
इस पेड़ का फल मत खाना, या कहा कि इसके करीब भी मत जाना। वालिमीन का रूट है ज़-लाम मीम, और जालिम जुल्म सब इसी से है, और जुल्मातुन अंधेरे भी इसी रूट से है, जुल्मातुन का भी यही है। और ऐसा अरबिक लैंग्वेज में होता है कि सेम रूट होते हैं लेकिन वर्ड फॉर्मेशन अलग होता है और उसका मीनिंग भी अलग होता है। जुल्म क्या होता है? जुल्म होता है किसी के हक में कमी करना, किसी को उसके हक से कम देना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, मगर एक मामूली सी पाबंदी लगाई गई थी। आयत नंबर 36, फिर अजल्ला, जा लाम लाम इसका रूट है, जल यानी फिसला देना, कॉज टू स्लिप। अजल्ला हुमा, उन दोनों को, हुमा यानी वो दोनों, हुम यानी वो प्लूरल में, और हुमा यानी दो जनों के लिए। तो उन दोनों को फिसला दिया शैतानु, शैतान ने, अनहा उससे। किससे फिसला दिया? उस हुक्म से जो अल्लाह सुब्हान तआला ने दिया था कि इस पेड़ के करीब ना जाना। फअखरजहुमा, और उन दोनों को निकलवा दिया। फिर से देखिए हुमा आया है, अखरजा, खरजा हम पढ़ चुके हैं, निकालना, खुरूज हम कहते हैं बाहर निकलने की जगह को, और मखारिज जो कहते हैं कि आवाज के निकलने की जगह को, हुरूफ की अदा करने की जगह को मखारिज कहते हैं। तो उसी तरह से खरजा निकला दिया, दोनों को निकलवा दिया, फिर उन दोनों को निकलवा दिया, मिम्मा उससे, यानी जन्नत से, काना थे वो फी ही उसमें, जिसमें वो थे उसमें से निकलवा दिया, यानी जन्नत से निकलवा दिया। वकुलना, और कहा हमने, ये अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इहबितू, उतर जाओ, इहबितू उतर जाओ। हाबाता इसका रूट है और माना है नीचे उतरना, टू डिसेंड। तो नीचे उतर जाओ यानी जन्नत से उतर जाओ जमीन पे। बादुकुम, तुम में से बाज, यानी तुम में से कुछ लोग, बाज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बाज का मतलब बाज लोग जैसे होता है वैसे ही है। लिबागिन, बाज के लिए, अदुउन दुश्मन है, यानी शैतान जो है वो इंसानों का दुश्मन है और इंसान भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। अदू हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अदू का मतलब होता है दुश्मन। आइन दा वाव इसका रूट है। मुस्तकर्रुन, काफ रा रा इसका रूट है, मुस्तकर्रुन करार पाना, यानी आराम पाना, ड्वेलिंग प्लेस जहां रहने की जगह, तो करार से है मुस्तकर्रन। तो मुस्तकर्रुन जहां करार है, जाए करार है, यानी रहने की जगह है। वो मताउन, और फायदे की जगह है, फायदा उठाना है। मता हम कहते हैं फायदे को, मीम ता आइन इसका रूट है। टेम्पररी प्रोविजन, थोड़ा सा आराम। मता हम मालो मता भी कहते हैं, मालो मता यानी फायदे की चीजें। इलाहीन, एक वक्त तक, हीन यानी कुछ अरसे तक, एक मुद्दत तक, कुछ थोड़े वक्त अरसे के लिए। तो इस एक आयत से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। पहली बात तो ये जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी स्टोरी, जो पॉपुलर स्टोरी है कि इंसान की आदम और हवा सलामुन अलैहा में से, हवा सलामुन अलैहा की गलती थी कि उसे शैतान ने फिसलाया, लेकिन यहाँ कहा गया कि फ़अज़ल्लहुमा, उन दोनों को शैतान ने फिसलाया। किसी एक को यहाँ पे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं ब्लेम करते, बल्कि कहते हैं दोनों को फिसला दिया। और फिसलना, यहाँ पे कहा गया फिसला दिया, यहाँ कोई बहुत बड़े गुनाह की बात नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है एक छोटी सी बात की, जहां आप स्लिप हो जाते हो, जहां आपसे छोटी सी गलती हो जाती है। और शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया, अनहा उससे, यानी उस हुक्म से फिसला दिया। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन ही के लिए बनाया था, ये बात हमने पहली आयत में पढ़ ली थी। और फिर कहा गया कि तुम, यानी जो शैतान है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये बात भी हमें यहाँ से पता चलती है। और शैतान
ने किस तरह से वसवसा डाला, किस तरह से इंसान दोनों को बहकाया, इस बात का खुलासा यहाँ नहीं मिलता। लेकिन ये नहीं कहा गया कि शैतान जो है सांप बनकर आया या इस तरह से नहीं। जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, दूर से भी बात हो जाती है, तो या तो शैतान ने दूर से वसवसा डाला या शायद शैतान जन्नत में मौजूद था और अल्लाह ने उसे वहाँ जाने की इजाज़त दी थी। और ये भी हो सकता है कि वो सामने आकर खड़ा हुआ और उससे बात की आदम अलैहिस्सलाम से और हवा सलाम, या फिर वो उनसे छुपा हुआ था और वो उसने उसी तरह वसवसे डाले जिस तरह से उसने हमारे दिलों में वो वसवसे डालता है। तो ये सब कुछ यहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन किसी तरह से शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन दोनों को कहा गया कि उतर जाओ ज़मीन की तरफ, मुस्तक़र्रुन, ठिकाना है, करार की जगह है, वो मताउन और फ़ायदे की जगह है तुम्हारे लिए एक वक़्त तक। जो ज़मीन है उसे बतौर सज़ा नहीं बनाया गया है, इंसान को यहाँ पर सज़ा के तौर पर नहीं भेजा गया है, बल्कि पहली बार में ही इंसान को ज़मीन ही के लिए बनाया गया था और यहाँ पर फ़ायदे की चीज़ें हैं इंसान के लिए और करार की जगह है इंसान के लिए ज़मीन। और इस कहानी का एक गलत वर्ज़न जो हमने पढ़ा था जिसमें ये कहा गया था कि औरत इसकी ज़िम्मेदार है और इसी वजह से दुनिया में भी औरत को हर महीने जो मंथली साइकिल से गुज़रना पड़ता है और जो बच्चा वो पैदा करती है, उस वक़्त जो उसे तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो उस गुनाह की सज़ा है। लेकिन अरबी ज़बान में माँ की कोख को रहम कहते हैं। अल्लाह ने माँ की कोख को अपना नाम दिया है। अल्लाह का नाम है रहमान और माँ की कोख को रहम कहा गया है। तो ये सब बातें जो हम पढ़ते हैं कि औरत की गलती थी और औरत बतौर सज़ा ये सब कुछ भुगतती है, बल्कि ऐसा सब गलत है। माँ बनना बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि अगर इंसान को दुनिया ही के लिए बनाया गया था, तो जन्नत में क्यों रखा गया? जन्नत में इंसान को बतौर इम्तिहान रखा गया था। ये एक इम्तिहान था ताकि इंसानी फितरत को समझे, इताअत और नाफरमानी के बीच में फ़र्क को समझ जाए, ज़मीन में जाने से पहले। जब इम्तिहान होता है किसी का, तो वहाँ इंसान सिर्फ़ पास या फ़ेल नहीं होता, बल्कि इम्तिहान से वो बहुत कुछ सीखता है और ज़्यादा सीखता है जब वो फ़ेल होता है। तो यहाँ आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा सलामुन अलैहा को ये सिखाया गया कि अल्लाह की इताअत ज़रूरी है इंसान की कामयाबी के लिए और अल्लाह की नाफरमानी नुकसान का सबब है, ज़ालिमों में शामिल हो जाने का सबब है। और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान इंसानी फितरत का दुश्मन है और उसका मकसद है इंसान को अल्लाह के हुक्म से दूर कर ले जाना और उससे हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए क्योंकि वो खुद खसारे में रहा है। वो खुद तकब्बुर का शिकार होने की वजह से नुकसान में रहा है और वो चाहता है, वो हमारा दुश्मन है, वो चाहता है कि हम भी नुकसान में ही रहें। अल्लाह ने आदम की नस्ल यानी इंसानियत और शैतान के दरमियान दुश्मनी का इज़हार किया, जो क़यामत तक चलती रहेगी और ये इंसानियत और शैतान के दरमियान की जंग का आगाज़ था। और इससे ये भी पता चलता है कि हर इंसान के गुनाह के पीछे उसका नफ्स है और शैतान है। लेकिन हिदायत का चिराग जो है वो हमेशा रोशन होता है और अल्लाह की इताअत ज़रूरी है। तो शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा सलामुन अलैहा को ये धोखा दिया कि इस दरख्त से वो फल खा लें और उन्होंने ये काम कर लिया, शैतान की बातों में आकर। तो ये जो जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को भेजा, तो इंसान को ये बताने का तरीका था कि दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान से भरी हुई है। हर वक़्त उस इंसान को अपने इरादों और अमल
کا ذمہ دار ہے، انسان خود اپنے ارادوں اور عمل کا ذمہ دار ہوگا اور اسے ہر وقت فیصلے کرنے ہوں گے اور اپنے صحیح اور غلط فیصلے کا وہ خود ذمہ دار ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی اسے خود بھگتنا ہوگا۔ اور ایک بات اور کہی گئی ہے اس آیت میں کہ الہین، ایک وقت تک، یعنی ہم زمین میں ٹیمپرری ہیں، یہ ہمارا ٹیمپرری ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہمیں جنت میں یا جہنم میں ہی ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے قابل بنائے اور ہمیں جنت نصیب کرے۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on Quranic insights and Islamic reminders. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as sadaqah jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and dua.